Hello students, welcome to your geography class for lesson number 5, precipitation. Students, we know that there is a unequal distribution of water and land on the earth's surface. Almost 70.8% part of earth's surface is full of water. What is commonly we know that hydrosphere, and remaining part, that means almost 29% part is covered by land portion, that is known as lithosphere. The distribution of this water part, that means 70.8% part of the earth's surface which is occupied by water, this distribution of water is also uneven. At some places the water storage is limited while it is ample at some places. That means at some places you will find more water bodies, expanded water bodies, but in some part you will find that water bodies are very less, or we can find the scarcity of water. So we see or experience a different form of the condensation as shown in the picture in your textbooks. That in your textbook you can see the different forms of कंडेंसेशन. आपको याद होगा कि आपने लोअर क्लासेस में जो है वो एक वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, दैट वाटर is just accumulated or just came to the earth by the way of rain. After that it just accumulated in sea, water, ocean, lake etc. यानी water bodies जो होती वहाँ पर क्या होता है, वो सारा का सारा water जो है जमा होता है, maybe ground water and all, and after that when it receives the heat, so after that when it receives the heat from the sun, that water evaporates. After that evaporation, when it reaches at a certain height, because of the coldness in the atmosphere, it get condensed and may possible some water droplets, some of the evaporated these water bodies से जो भी evaporation हुआ था वो कुछ part जो है वो क्या होते हैं water droplets में convert हो जाते हैं. If it receives more coldness, so it get convert into the snow also. At some time it happens that it get converted into the hailstones also. So this is what different types of condensation occur at different places. We know that atmospheric condition is also changes, right? And we see changes in the form of condensation too. According to the change in the atmospheric condition, we see the changes in the condensation process. In the winter morning we find dew. Normally आपने देखा होगा dew drops होते हैं plants वगैरह पर, आपको जो है वो पानी के छोटे droplets नजर आते हैं, that is what dew. Mostly we can find that in the winter. In areas located at higher altitude, snowfall occurs. That means the places which are located at a very higher altitude. Altitude means height from sea level. तो वो जो बहुत height पर होते हैं, especially जो आपने देखा होगा tall mountains होते हैं, बहुत highest mountains जो होते हैं, they are having the highest altitude. So mostly those mountains are snow-clad peaks. वहाँ पर जो है वो snow बहुत ज़्यादा होती है, snowfall. हम वहाँ पर जो है वो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस होता है, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस होता है. वाइल इट रेन्स इन अदर प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली इफ यू विल सी द साउदर्न पार्ट, so because of the topography of the land or the physical structure of the land, we can find that घाट का एरिया जो है बहुत ज़्यादा है. if you are talking about India, so eastern and western घाट, because of that orographic rain जो है होती है, और उसका रिजल्ट क्या है, there we can find the heavy rainfall. So this is what, according to the changes in the atmospheric condition, we can find different forms of condensation. Sometimes we find the dew drops, sometimes we find the snowfalls or rainfalls etc. Some places experience dense fog. आपने विंटर सीजन में देखा होगा पूरा एक जो है वो स्टीम जैसा जो हमको नजर आता है, एकदम बहुत ज़्यादा जो है एकदम धुआं जैसा उठ रहा है ऐसा लगता है, और बहुत डार्क जो है वो एक फॉग जैसा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत छोटे डिस्टेंस तक जो है आप देख सकते हैं. मोस्टली ऐसा होता है कि यू कैन नॉट सी टू द वेरी लॉन्गर डिस्टेंस. एंड इवन सम एक्सपीरियंस हेलस्टोन सडनली एंड फेस क्रॉप डिस्ट्रक्शंस. और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर क्या होता है, हेलस्टोन्स जो होते हैं, हेलस्टोन जो है क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन. इन दैट वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बड़े बड़े आइस के टुकड़ों में. व्हाट इज दिस, हाउ दे आर फॉर्मिंग, वी विल लर्न अबाउट देम इन द कमिंग लेक्चर. हम डीपली जो है ये जितने भी प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन के जितने भी
पार्ट है या जितने भी फॉर्म्स हैं, यू विल सी अबाउट देम वन बाय वन, हम उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे. बट जस्ट कीप इन योर माइंड दैट हेलस्टोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है वो आइस के टुकड़े होते हैं, पीसेज होते हैं, दैट व्हाट वो जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली क्रॉप्स पूरी क्या होती है, फेल हो जाती है. ओके, सो इफ़ in simple word you want to understand what is precipitation, as our topic is precipitation. So what is precipitation? Water that falls to earth in any form, whether it is rain, snow, sleet or hail, all these are known as precipitation. These are the form of precipitation. So water falls in the solid or liquid state from the cloud to the ground, right? Solid state, that means hailstones, snow, ये सब क्या है, स्लीट, दीज आर दी सॉलिड फॉर्म्स, एंड लिक्विड फॉर्म दैट मीन्स रेन. तो इन एनी फॉर्म वाटर फॉल्स इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड, मे बी स्नो, hailstones, rainfalls are the major forms of precipitation. So students, we will learn about them in detail one by one so that we can understand it more precisely. So let's begin with the first type, that is snow. When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. Normally कैसा होता है, how this snow forms, ये snow कैसे form होते हैं, because we know that water evaporates and condensed, and after that condensation this is what this type of precipitation occurs. बट हाउ दे आर बीइंग क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कि कभी जो है इवेपोरेशन के ही प्रोसेस में कभी वो स्नो बन जाता है, कभी हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, कभी स्लीट हो जाता है. तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स, या कभी रेन के फॉर्म में जो है वही वाटर ड्रॉपलेट नीचे आते हैं. सो वाई दिस इज सो? सो द रीज़न बिहाइंड दिस दैट स्नो कैसे फॉर्म होता है कि जब टेम्परेचर जो होगा एटमॉस्फेयर का, इट गेट फॉल्स हाउ मच, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब जाता है टेम्परेचर माइनस में, तो वो क्या होता है, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. सो व्हेन इट रीचेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, सो वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न्स इनटू स्नोफ्लेक्स. वाटर वेपर क्या होते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं, स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ वाटर डायरेक्टली टू द solid state is known as sublimation. Here the water in the form of gas transformed into solid snow. इवेपरेशन के प्रोसेस में हमारे पास क्या था, वो एक्चुअली वो गैस था. वाटर जो था क्या हो गया था, गैस बनकर जो है वह इवेपरेट हो रहा था, और वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट होकर क्या बन गया, स्नो, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. सो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. एंड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल. दैट मीन्स इफ precipitation is occurring in the form of solid particles, so it is known as snowfall. In high latitudinal and temperate regions, snowfall occurs at the mean sea level, while in tropical areas snowfall occurs at places located higher than snow line altitude. अगर हम हाई लैटिट्यूडनल और टेम्परेट रीजन की बात करें, आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, ईयर्स ऑल्सो यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट जोन्स. टेम्परेचर के हिसाब से जो अलग अलग जोन्स क्रिएट होते हैं, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन. तो ये क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, हीट एंड इंटेंसिटी रिसीव फ्रॉम द सन, उसके हिसाब से क्या होते हैं, ये जोन्स क्रिएट होते हैं. सो जो प्लेस है, इफ़ इट इज़ एट हाई लैटिट्यूडनल एंड टेम्परेट रीजन, तो मोस्टली वहाँ पर क्या होता है, मीन सी लेवल जो होगा उसके हिसाब से स्नो जो है वो वहाँ पर स्नोफॉल होता है. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल एरियाज, सो देयर वी कैन फाइंड द स्नोफॉल एट द प्लेसेस विच लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड. जो स्नो लाइन होती है उससे हायर एल्टीट्यूड पर रहेंगे तो वहीं पर क्या होती है, स्नोफॉल होती है. एट द वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज. ओके, tropical areas, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, etc. That is what known as tropical areas. As snow is in the solid form, it does not flow like water. We know that snow is a type of solid form, right? तो वाटर की तरह जो फ्लो नहीं हो सकती है वो, बट लेयर्स ऑफ स्नो गेट डिपॉजिटेड व्हेन द स्नो एक्यूमुलेट्स ऑन अ लार्ज स्केल, देन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ दैट एरिया कोलैप्सेस.
जब स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, एक के ऊपर जो है वो लेयर बाय लेयर क्या होता है, दैट आइस इज गेट एक्यूमुलेटेड। वो जो स्नो है यानी स्नो के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक जो है पूरे वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। एंड व्हेन इट एक्यूमुलेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, सो मोस्टली वी कैन फाइंड दैट देयर इज़ अ कोलैप्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पूरा जितना भी रोड वगैरह होता है ये सब क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कंटिन्यू विद द ट्रैवल। People living in those regions have to protect themselves from frostbites, and when the snow melts the region gets water। तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो ऐसे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर के लोग जो है थोड़े से डेंजर जोन में होते हैं। दैट मीन्स जब वो स्नो मेल्ट होगा तो वाटर लेवल जो होता है वाटर बॉडीज़ का वो भी इंक्रीज होता है। सो मे पॉसिबल देयर विल बी अ चांसेस ऑफ फ्लड ऑल्सो। एंड इवन ऐसे सारे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर का पूरा जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो एनी टाइम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है। सो वहाँ के जो पीपल होते हैं उनको उस हिसाब से जो थोड़ा सा अलर्ट या थोड़ा सा जो है वो प्रिकॉशंस के साथ रहना होता है, राइट। ओके, हियर यू आर गिवन विथ वन कॉलम, डू यू नो snow capped mountain and frozen lakes. There is a difference between ice and snow. Both are different from each other, ice and snow. In areas located at higher altitude and high latitude where the temperature are below 0 degrees Celsius, precipitation occur in the form of snow. ऐसे places जो बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली स्टार्टिंग में हमने देखा था दैट टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और फिर वहाँ पर क्या होते हैं, नॉर्मली प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो। Snow is variable and opaque. This snow accumulates in the form of the layer on top of each other. Because of the pressure from the upper layer, the lower layer of the snow becomes homogeneous, massive and transparent. Massive transparent snow formed in such a way is called ice. नॉर्मली कैसा होता है कि लेयर बाय लेयर जो है वो स्नोफॉल जब होता है, सो स्नो गेट एक्यूमुलेटेड वन आफ्टर अनदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अपर लेयर होता है उसका प्रेशर जो है स्नो का नीचे की जो लोअर लेयर होती है उस पर रिसीव होता है, राइट। बिकॉज नीचे का जो लेयर है उस पर ऊपर की चीज़ों का प्रेशर आएगा ना, तो लोअर लेयर जो स्नो की होती है दैट इट गेट्स एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो प्रेशर रिसीव होता है उसकी वजह से क्या होता है, लोअर लेयर ऑफ द स्नो बिकम्स होमोजीनियस, मैसिव एंड ट्रांसपेरेंट। उसमें चेंजेस होने लगती है, वो होमोजीनियस हो जाती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की हो जाती है, मैसिव हो जाती है, एंड दैट मैसिव ट्रांसपेरेंट स्नो इज विच इज़ फॉर्म्ड इन सच अ वे इज़ नोन एज आइस। आपने देखा होगा आइस गोला हम लोग लेते हैं या ये सब जो खाते हैं हम आइस की चीज़ें, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो आइस उनके पास होता है या हम जूस वगैरह में जब आइस डालते हैं तो वो आइस आपने देखा होगा इट इज़ व्हाट एक्चुअली दिस वेरी सॉलिड फॉर्म और ट्रांसपेरेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, नॉर्मली जो है हम लोग सब डे टू डे लाइफ में अपने चाइल्डहुड में कभी ना कभी जो है वो गोला खाते हैं, बचपन में हम लोग जो खाते हैं ना जूस वगैरह उसमें डालकर, तो उसमें जब वो बनाया जाता है तो मशीन में जब उनको उसको रख कर जो है वो जब उसको रोटेट करते हैं तो ब्लेड से जब कट होता है, तो कट होने के बाद नीचे जो होता है वो क्या होता है, बारीक बारीक फ्लेक्स या बारीक बारीक जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में वो इनके जमा होता है, राइट। और ऊपर जो है मेन जो पोर्शन रखा होता है वो क्या होता है, आइस होता है। आपने वो आइस देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो होमोजीनियस और एकदम जो है वो मैसिव और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन नीचे जब वो ब्लेड से कट होकर जो जिस फॉर्म में नीचे जो है जमा होता है बारीक बारीक जो पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो वो क्या है, दैट इज़ व्हाट वी कैन से स्नो के जैसे एक टाइप होता है। और वो जो एक्चुअल में वो पूरा होता है वो क्या होता है, पूरा जो एक फ्रीज्ड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है आइस। दिस इज़ व्हाट, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट देन टू जस्ट इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर कॉमनली जो है वो अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस, सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट actually snow get converted into ice when that snow receives, lower layer of the snow receives a pressure from the upper layer, and that's why because of receiving that pressure from the upper layer it get converted into the massive transparent snow form, that is what known as ice.
When temperature drops below freezing point, a layer of ice forms on the lake surface and this layer floats on the surface of the reservoir. नॉर्मली ऐसा होता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो जो मोस्टली लेक्स की सरफेस होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे आइस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरे एक जो है वो पूरे जो है वो एक लेयर जैसे फॉर्म होकर ऊपर जो है वो लेक के अपर पार्ट जो होता है वाटर बॉडी का सिर्फ फ्लोट होते रहते हैं. दिस आइस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्नोफॉल डायरेक्टली, लेकिन वो जो है वो आइस जो होती है वो स्नोफॉल से रिलेटेड नहीं होती है. वो क्या हो गया, वाटर का जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जाने की वजह से वो क्या हो गया, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू दैट आइस लेयर्स. बट हियर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द लैंड एरिया, तो लैंड एरिया पर जो होता है वो क्या होता है, आइस के जो स्नो होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से वो कन्वर्ट होते हैं आइस में. नाउ वी लर्न द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट इज हेल. When there is a lot of heat on the earth's surface, the upward air flows below at a greater speed. जब अर्थ की सरफेस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हीट हो जाती है, ज़्यादा हीट रिसीव होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो एट द टाइम व्हाट हैपेंस, एयर फ्लोज अपवर्ड. जो अपवर्ड की तरफ एयर का फ्लो था वो क्या होती है, बहुत ही ग्रेट स्पीड से नीचे की तरफ वापस आती है. दैट मीन्स एक्चुअली एयर इज हैविंग अ फ्लो टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड्स द स्काई. इस तरह का उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है अर्थ पर तो क्या होता है ग्राउंड पर, तो वो एयर जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो क्या होती है, बहुत ही ग्रेट स्पीड से नीचे की तरफ आती है. Because of this upward flow, the temperature of the air reduced and condensation of the water vapor takes place. अब वो जो upward flow है एयर का तो बहुत स्पीड से ऊपर जाती है, तो क्या होता है अल्टीमेटली ग्राउंड से जितना जितना एयर ऊपर की तरफ जाएगी, दूर जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है. वी नो दैट टेम्परेचर इज मोर और मैक्सिमम नियर टू द ग्राउंड, सरफेस एरिया जो होता है वहाँ ज़्यादा होता है. एंड एज वी मूव farthest from the ground we can experience decrease in temperature. So ऐसे ही क्या होता है, जब वो एयर ग्राउंड से जो है जितना दूर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ ऊपर फ्लो करती है, so temperature reduced and it result into the condensation of water vapor and dark clouds are formed because of that. And because of the upward movement of air, these water droplets go to a higher altitude. Here solidification of these droplets occur and hailstones are formed. जब वो एक पर्टिकुलर एक ऊपर ऐसे एटमॉस्फेरिक पार्ट में पहुंच जाती है जहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा कम होता है, एक्सट्रीमली लो होता है, तो डायरेक्टली क्या होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहे थे वो डायरेक्ट जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं. And because of that solidification of droplets, it get converted into the hailstones. As hailstones are heavy, they fall towards the ground. अब क्या होता है मोस्टली वी नो दैट अब अगर वो hailstone बन गए यानी कि उनका वेट भी ज़्यादा रहेगा, so they are heavy and because of that their heaviness they fall towards the ground. But because of the frequent upward flow of air they are repeatedly taken upward. एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, अभी सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस हो गया. सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में क्या हो गया, दैट वाटर वेपर जो थे वो कन्वर्ट हो गए हेलस्टोन के फॉर्म में. अब हेलस्टोन जब फॉर्म हो गया है सो इट इज़ वेरी हेवी, तो वो क्या होते हैं, दे वर जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. ग्राउंड पर आने के प्रोसेस में ही इन बिटवीन टू दैट ओनली एयर जो है वो फ्रीक्वेंटली क्या होती रहती है, अपवर्ड की तरफ फ्लो होती रहती है. तो जब वो हेलस्टोन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सट्रीम प्रेशर के साथ जो है बहुत सारी एयर जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होती रहती है. सो दे रिपीटेडली टेकन अपवर्ड्स. तो वो क्या करती है, एयर अपने साथ जो है जब वो एयर ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो अपने साथ वो हेल के पार्टिकल्स जो नीचे आ रहे थे यानी हेलस्टोन्स जो नीचे आ रहे थे उनको फिर ऊपर की तरफ लेकर चली जाती है. इट जस्ट टेक्स देम रिपीटेडली टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन एंड हियर अ न्यू लेयर ऑफ स्नो इनकेप्सुलेट द हेल. यानी ऑलरेडी जो हेल बना था उसके ऊपर एयर का प्रेशर जो है ग्राउंड से फिर रिसीव हुआ उसको, और वो जो नीचे आ रहा था हेल स्टोन वो क्या हो गया, फिर ऊपर की तरफ जाता है. ऊपर की तरफ जाते हुए फिर क्या होता है, व्हेन इट रीचेज certain height, so at that place
फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, वो वाटर वेपर यानी वो एयर जिसके अंदर वाटर वेपर है वो क्या होते हैं ऊपर जाके फिर उनमें कंडेंसेशन या सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है और ऑलरेडी जो हेल स्टोन था उसी के ऊपर फिर क्या होता है इनकैप्सुलेट्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि ऑलरेडी जो हेल था उसके ऊपर और ज़्यादा जो है वो क्या होता है हेलस्टोन के जैसा जो आइस का वो होता है वो और उसके ऊपर जो है वो सब तरफ से एक्यूमुलेट होकर जो है इस पर जमा हो जाता है, यानी छोटा हेलस्टोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बड़े हेलस्टोन के पार्टिकल में। एंड दिस हैपन्स क्वाइट अ फ्यू टाइम, और ऐसा काफ़ी बार रिपीटेडली ऐसा प्रोसेस होता रहता है। दैट मीन्स व्हेन इट वांट्स टू कम टुवर्ड्स द ग्राउंड एयर टेक्स देम अपवर्ड, and because of that solidification process whatever hailstone was formed earlier in a very small piece it get converted bigger and bigger, hence concentric layers are formed while the hail grows in size। अब कंटिन्यूसली कोई छोटी चीज़ पर जो है लेयर्स लगाते जाएंगे हम, अपर साइड से लेयर उसके ऊपर फॉर्म करते जाएंगे तो उसका जो स्मॉल साइज था वो बढ़ती जाएगा ना, इट गेट एनलार्ज्ड। सो फाइनली दैट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म्ड और हेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बड़े बड़े साइज के फॉर्म हो जाते हैं। दीज बिग हैवी हेल स्टोन्स फॉल रिपीटेडली टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वी कॉल द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस टाइप एज हेल शावर। फिर क्या होता है, अब वो बहुत हैवी भी हो चुके हैं एंड वी नो दैट अर्थ इज हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या करती है अपनी तरफ जो है वो अर्थ अपनी तरफ जो है हेल स्टोन्स को पुल करती है, खींचती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेल स्टोन्स दे जस्ट केम टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन। दिस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज हेल शावर्स। Because of hail, crops may get destroyed and loss of life and property may occur। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो हेल होती है क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो हेल का पार्ट है, ये जो हेल स्टोन्स फॉर्म हुए हैं ये दे जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू बिगर एंड बिगर साइज। छोटे हेल जो थे वो फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर उन पर सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इनकैप्सुलेट होते हैं वो और वापस से नीचे की तरफ आते हैं, फिर वापस से एयर उनको प्रेशर देकर जो ऊपर की तरफ एक्सर्ट करती है एंड दिस प्रोसेस इज इन अ कंटिन्यूसली जो है वो फ्यू टाइम्स होता ही रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन इट फाइनली रीचेस टू द ग्राउंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेरी लार्ज पीसेस ऑफ द हेल। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स टू एंड इवन एट सम प्लेसेस वी कैन फाइंड द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल टू। हेल ऑकर्स इन समर इन इंडिया। मोस्टली अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो है वो हेल स्टोन का ये जो हेल शावर जो होता है कब होता है, समर सीजन में होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा हेल के फॉर्म होने का प्रोसेस कब होता है, व्हेन इट रिसीव्स हीट टू द ग्राउंड, जब ज़्यादा हीट रिसीव होती तब होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ इंडिया में कब होता है, समर सीजन में होता है। इवन इन अफ्रीका ऑल्सो इट इज़ अकरिंग इन समर सीजन एंड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हेल डू नॉट अकर इन इक्वेटोरियल एरियाज। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के जहाँ पर हेल जो है वो इक्वेटोरियल एरियाज में नहीं होता बिकॉज ऑफ द हीट इन द एटमॉस्फियर। हेल्स डू नॉट ऑकर इन कोल्ड जोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अपवर्ड फ्लो। एक तो रीज़न ये है कि कोल्ड जोन में पॉसिबल नहीं है हेल स्टॉर्म या हेल शावर, बिकॉज इसके लिए क्या होता है कोल्डनेस में जो हेल फॉर्म नहीं हो सकते, इट नीड्स अ सर्टेन टेम्परेचर, हाँ हॉट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और हॉट टेम्परेचर अगर नहीं रहेगा तो एयर का अपवर्ड फ्लो पॉसिबल नहीं है। इफ़ एयर विल नॉट मूव अपवर्ड सो दैट सॉलिडिफिकेशन ऑफ द water vapor will not possible and hail will not form. So mostly we cannot find them in cold zones also. So here students we have learned the two types of precipitation, snow and hail. In the coming lecture we are going to learn the third and most important part or type of precipitation, that is rainfall. Thank you students.